Recording in Hello, audible to all of you. Yes, sir. In the last class of isomerism, we discussed about conformational analysis of ethane, and we have drawn all the 7 structures to reach the first one again. So let's do it in detail. Conformational isomerism is stereoisomers which can interconvert rapidly at room temperature through rotation about single bond and can't be separated, because if you rotate a bond and you are getting different orientation, you cannot separate it. A different orientation of same molecule which results by rotation about single bond are called conformations or conformers or rotational isomers or rotamers. The number of conformers possible for a compound is infinite. Why? Because you can rotate about a bond from 0 to 360 degree. So there are infinite angle through which you can rotate. You already have seen this. If I rotate this bond, if I rotate the molecule by holding the front part or back part, and the remaining part, if I rotate by some angle, you'll get different orientation. If I rotate by 180 degree, it will become staggered from this configuration. Another will be what? Eclipsed. The different orientation of same molecule will result by rotation about single bond are called conformations. The number of conformers possible for a compound is infinite, since the energy barrier or rotational barrier between most stable to least stable conformation is very less. In case of ethane, it is around 3 calorie. It is impossible to separate this conformation. Matlab, from staggered to eclipsed, if you check, then you will find what? If you rotate the molecule, then it needs only 3 kilocalorie per mole. It means it can be obtained from the surrounding at room temperature normally. So eclipsed and staggered cannot be separated, but still the stable form is what? Staggered. तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहेंगे? वो स्टैगर्ड के फॉर्म में रहेंगे. Conformation can be represented by wedge dash projection or Sawhorst projection or Newman projection. तो जो हमने सिखाया था आपको न्यूमन सॉहर्स, पहला कौन सा है? वेज डैश. दूसरा कौन सा है? सॉहर्स. और थर्ड इज व्हाट? न्यूमन. Newman, Sawhorst and wedge dash. First is what? All are eclipsed. Second is what? Staggered. Between all this, other than these two conformation, all are known as what? Skew conformation. बताया था? Other than eclipsed and staggered conformation, are known as skew conformation. तो ये सब चीजें समझ गए थे, बस थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में डाल दिया. न्यूमन प्रोजेक्शन बता दिया था. In this projection, CC bond lies along the line of vision and therefore cannot be seen. In this projection, the front carbon and group attached to it are shown as 3 equally spaced lines from a point, starting from a point. The rear or back carbon is shown as circle with 3 equally spaced shorter lines. बता चुके हैं. Condition for conformational isomerism. देखो सब लोग यहाँ पे गौर करना कि what is the condition for conformational isomerism. ये चीज समझने वाली है. Free rotation about single bond, that is CC, CO, CN, NN, NO, OO. In सब के round possible है. ABCD unit should be present. How many atoms should be linked? ABCD unit, where atoms B and C are attached by single bond. B and C are central bond. BC bond is what? Central bond. BC bond
is central bond. There should be 4 atoms continuously attached, then only the conformational isomerism is possible. Or dihedral angle should be present. Very, very important. Dihedral angle should be present. Angle between planes ABC and BCD. Because if there are 4 atoms possible, then you can imagine 2 planes. अगर 4 atom Sir, connected है, हाँ बोलो. somebody is in the meeting room. कहाँ कोई दिखा है? मैसेज भी नहीं आया ओपन अप, तो नोटिफिकेशन आती है. एक मिनट बेटा. तो if I have, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ. I'm checking. Dihedral angle should be present. लिखा है. What is dihedral angle? Dihedral angle is not a bond angle. First of all, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. Dihedral angle is not a bond angle. Dihedral angle is not bond angle. Angle between planes ABC and BCD. ABC 3 पॉइंट है, 3 एटम्स हैं, तीनों कनेक्टेड है आपस में. You can imagine a plane ABC. Similarly BCD you can imagine a plane. And BC में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. BC में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर सकते हैं. तो DC जो बॉन्ड है, हेलो सुन रहे हैं सब लोग? DC जो बॉन्ड है वो AB के जस्ट अपोजिट भी आ सकता है ना श्रेयस? DC के अपोजिट आ सकता है और सामने भी आ सकता है. अगर DC सामने आएगा तो बॉन्ड पर रिपल्शन होगी. क्या बोलेंगे उसको? एक्लिप्स्ड. अगर अपोजिट आएगा तो क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड. हेलो क्लियर है? Yes sir. अच्छा अगर अभी ABC प्लेन देखूं मैं, अगर ABC प्लेन है और BCD प्लेन है, बुक आपके सामने नोटबुक है, बुक को ओपन करिए. ओपन करिए, आपको आइडिया उसी से लगाता हूं मैं. जैसे आपने बुक ओपन किया तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट पेज और राइट पेज आपको दिख रहा है सामने. लेफ्ट पेज का जो बॉटम है, बॉटम लाइन जो एज है, एज और लेफ्ट कॉर्नर को जो 2 पेज के जो ज्वाइनिंग पोजीशन है, ये कॉर्नर है आपका बुक का. देखिएगा तो ये इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये बुक का लेफ्ट पेज का कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों पेज का. ABC एक प्लेन हो गया, एक पेज क्या हो गई? एक प्लेन हो गई. Similarly, the other page, all other, if I check the second page, right वाला, then जो top corner है, top right corner D connecting with CD एक bond हो गया. BC line के अराउंड हम लोगों ने बनाया. तो what is the plane imagine here? BCD जो प्लेन है, मतलब राइट वाला पेज और लेफ्ट वाला पेज दोनों अलग अलग प्लेन हो गए. दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? वही डायहेड्रल एंगल. Plane formed by joining the ABC points, plane formed by joining the BCD points, you will get 2 planes. If you close the book, what is the angle between 2 planes? बोलो. Zero. अब जैसे धीरे धीरे बुक खोलोगे. अच्छा बुक अगर बंद कर दी हमने तो AD बॉन्ड और CD बॉन्ड आमने सामने आएंगे कि नहीं बताइए? हाँ. AD बॉन्ड और CD बॉन्ड आमने सामने आएंगे. इसका क्या मतलब हुआ? तो दोनों आमने सामने आएंगे तो एंगल क्या हो गई? 0 हो गई. तो डायहेड्रल एंगल क्या हो गया? 0. फिर वही अगर आप फ्रंट से देखोगे तो BC लाइन दिखेगा क्या? BC लाइन नहीं दिखेगा. सिर्फ क्या दिखेगा? A दिखेगा, B दिखेगा और C तो हिडन दिखेगा और D बॉन्ड दिखेंगे. इसको कहते हैं एंगल बिटवीन AB एंड CD बॉन्ड. AB एंड व्हाट? CD बॉन्ड. इट इज नॉट बॉन्ड एंगल अगेन. है तो प्लेन का एंगल. अगर आप फ्रंट से देखोगे, न्यूमैन देखोगे तो आपको क्या कौन से बॉन्ड दिखेंगे? सिर्फ AB ही दिखेगा और CD दिखेंगे. BC तो दिखेगा नहीं. तो प्लेन नहीं दिखेगा. प्लेन तो है, प्लेन दिखेगा नहीं, बट एंगल क्या हो जाएगी उसका? थीटा सेम टू सेम. क्लियर है यहाँ तक? तो न्यूमैन में फ्रंट वाला बॉन्ड और बैक वाला बॉन्ड, उनमें जो एंगल दिखती है वही एंगल क्या होता है? डायहेड्रल एंगल. समझ में आया सबको? काफी क्लियर है? हाँ जी. तो जो बुक थी, बुक को ओपन करिए
बुक में आपको दोनों प्लेन साफ साफ दिख रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट है? लेफ्ट पेज का पॉइंट कहाँ कहाँ पे, बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे, एक्चुअल बॉन्ड्स। तो लेफ्ट पेज के लेफ्ट पेज के जो बॉटम वाला एज है उसमें बॉन्ड है AB। पेज का जो ज्वाइनिंग पार्ट है जहां पे दोनों ज्वाइन किए हुए हैं वो है आपका BC। राइट का टॉप एज जो है वो आपका CD बॉन्ड। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंफर्मेशन। तभी तो अलग अलग कंफर्मेशन मिलेंगे, और जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे आपके कंफर्मेशन भी अलग अलग होते जाएंगे। जब AB और CD आमने सामने होगा तो उसको एक्लेस बोल देंगे। जब AB और CD अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट, उसको हम लोग स्टैगर्ड बोल देंगे। इससे सिंपल सिंप्लीफिकेशन इससे अच्छा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? श्रेयस, विनती, खुशी, सबको क्लियर है? अंकुश? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो क्या लिखा है? डायहेड्रल एंगल बिटवीन प्लेन्स ABC एंड BCD और डायहेड्रल एंगल बिटवीन AB बॉन्ड एंड CD बॉन्ड। AB बॉन्ड एंड CD बॉन्ड कभी बॉन्ड एंगल नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या AB और CD बॉन्ड? AB और CD कभी आपस में बॉन्ड एंगल बना सकते हैं क्या? बॉन्ड एंगल कब बनाते हैं? जब बी नहीं। पे ही दो बॉन्ड होगा। तो जो हम यहाँ पे एंगल की बात करें, या बॉन्ड एंगल आप ये इसकी बात करें, इसमें और इसमें बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता कभी। इफ डायहेड्रल एंगल डिक्रीजेस, देखिए क्या लिख रहा हूं, इफ डायहेड्रल एंगल डिक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर इन AB एंड BC बॉन्ड पेयर इन CD बॉन्ड आल्सो डिक्रीजेस। CD अगर सामने आ जाए तो बॉन्ड पर रिपल्शन हो जाएगी। टॉर्शनल स्ट्रेन इंक्रीजेस, क्या लिख सकते हैं? रिपल्शन between AB bond pair and pure understanding है AB bond pair and CD bond pair increases, torsional strain increases, stability decreases। ये हमारी conditions हो गए पूरे। तो यहाँ लिखा है which molecule differ, molecules in which molecules different conformations are observed, मतलब conformational analysis is possible। In which molecules different conformations are observed, or you can say which molecule can show conformational isomerism। Which molecule can show what? Conformational isomerism। तो CH4 में देखिए कंटिन्यूअस 4 आइटम्स हैं क्या, बताइए? कंटिन्यूअस A B C D यूनिट है क्या, बताइए? नहीं। नहीं No, है। sir. सिंपल, कंटिन्यूअस sir. 4 आइटम्स है ही नहीं। इफ आई चेक A B C पर D अवेलेबल नहीं है। इफ आई चेक A B C D अवेलेबल नहीं है, A B C D अवेलेबल नहीं है। और तो कंटिन्यूअस मेरे पास ABCD आइटम ही नहीं है। अगर ABCD आइटम होंगे तभी मेरे पास डायहेड्रल एंगल भी होगा। इसमें कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। और इसमें A B C D 4 आइटम पॉसिबल है। तो कोई भी 4 आइटम, बस हमारा ध्यान किस पे रहेगा? CC लाइन पे। कितना बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, वी हैव टू राइट लाइक दैट। C3H8, C3H8 को क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा ABCD, तो ये होगा A, हो गया A B C, और ये पूरा की जगह पे हमने सिर्फ D कौन सा आइटम है? ये तो D जो एटम है वो ग्रुप भी हो सकता है। तो आपको याद होगा न्यूमन और शॉर्ट्स में क्या लिखा था हमने? इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग CC बॉन्ड और 2 आइटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन इट। वही चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। C4H10 द मॉलिक्यूल इज दिस। तो C4H10 को हम दो तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। CC सेंट्रल हम लोग 2 और 3 पोजीशन ले सकते हैं। If I take 1 2 3 4, then this should be what? B and C. We can also take 1 2 3 4 and we can take what? This is B and C, और ये A, और दो तरह से हम लोग उसको एनालिसिस कर सकते हैं अबाउट C2 C3
and about, and you will feel that you will realize कि C2 C3 के अराउंड स्टडी ज्यादा क्लियर मिलती है. H2O2 इसमें पॉसिबल है क्या? बोलो. हाँ A B C D. तो H2O2 का तो नाम ही ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर. N2H4 हाइड्रोजन हो सकता है, A B C D सब में हो सकता है. H2O में नहीं हो सकता, NH3 में नहीं हो सकता, बिकॉज तीन ही आइटम मिलते हैं. अच्छा, इस मॉलिक्यूल में हो सकता है? सोच के बताइएगा. बताइए. नहीं. क्यों नहीं हो सकता है? डबल बॉन्ड. नहीं है ना, बीच CD बॉन्ड सिंगल होना चाहिए ना. BC बॉन्ड सिंगल होना चाहिए ना. इसको कहते हैं सिस जैसा, दिख रहा है सिस जैसा, सिसॉइड हो गया, उसका नाम है ट्रांसॉइड. पॉसिबल है. वो बोलोगे नहीं सर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस, बट आपको याद होगा कि जो चार सेपरेटेड स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है? नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल. जब विड्रॉइंग या डोनेटिंग डालते हैं तो ही फिर थोड़ा बहुत बढ़ता है चार सेपरेटेड. तो मॉलिक्यूल क्या रहना चाहेगा? सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहेगा ना बीच में मैक्सिमम टाइम. मैक्सिमम टाइम का मतलब मोर और लेस उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, इट इज जस्ट लाइक द सिंगल बॉन्ड, लिटिल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइजेस. आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था श्रेयस, बॉन्ड ऑर्डर क्या था? इफ आई टेक 1 2 3 4, तो C2 C1 C2 is equal to C3 C4 greater and greater than than, C2 C3. ये पढ़ा था हमने, वही एग्जांपल यहाँ यूज कर लिया. सिसॉइड एंड ट्रांसॉइड, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्फॉर्मेशंस हो गए. क्या हो गए बोलो? कॉन्फॉर्मेशंस. सिस ट्रांस नहीं है वो, दे आर नॉट सिस ट्रांस. दिस टू आर, these two are not cis trans isomer. It is similar to cis, दिख रहा है नाम उसका सिसॉइड. और देखिए कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन हमने कराया था आपको. फिक्स द फ्रंट कार्बन एंड रोटेट द रियर कार्बन अबाउट CC सेंट्रल बॉन्ड इन द इंक्रीमेंट ऑफ 60 डिग्री. कराया था ना? यस. होमवर्क भी दिया था मैंने ड्यूटेना करने के लिए, कर लिया था. डायहेड्रल एंगल इन एक्लिप्स कंफर्मेशन बिटवीन CHA एंड CHB बॉन्ड. मैंने कहा था AB बॉन्ड एंड CD बॉन्ड 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 and 360, 60, 180, 300. In this case, HA and HB are in anti conformation. कौन सा? 80 डिग्री. जब 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, in this case HA and HB are in anti conformation. 60 and 300 वाले जो पोजीशन है, जब 60 डिग्री पे HA HB था, this is HA HB किस एंगल पे है? 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री पे. और यहाँ पे HA HB किस में था? 60 डिग्री पे था. सब कराया था आपको मैंने, सिर्फ नाम ऐड कर रहा हूँ. A और B अगर अपोजिट है, ये स्टैगर्ड है, ये आपका स्टैगर्ड है. ये जो अपोजिट है स्टैगर्ड हो गए. तो स्टैगर्ड में भी इनका जो पोजीशन है, पोजीशन का नाम क्या है? एंटी पोजीशन. और ये भी स्टैगर्ड है, इनका नाम पोजीशन का है. इन दोनों को रिलेटिवली क्या बोलते हैं? गॉस कंफर्मेशन. गॉस नाम देंगे हम कंफर्मेशन का, पोजीशन की बात कर रहा हूँ. In this case, HA and HB are in Gauss conformation, GAUCH. Stability of conformers. The potential energy of eclipse conformation is 12 kilojoule per mole or 3 kilocalorie. Stability of conformers in C2S6 greater the potential energy of staggered conformation. That is, when staggered conformation converts to eclipse conformation, there is a the potential energy of eclipse conformation is 12 kilojoule per mole greater than potential energy of staggered conformation. That is, when staggered conformation converts to eclipse conformation. जब staggered eclipse में convert होगा, there is energy barrier of 12 kilojoule per mole.
for rotation about CC bond. This barrier is defined as torsional strain energy, torsional और rotational energy. तो eclipse था, eclipse से staggered बनाइए या staggered से eclipse बनाइए. तो आपको 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो क्या है, कितनी है इसकी एनर्जी, 12 किलो जूल पर मोल. अब देखो एक्लिप्स से मैं 60 रोटेट करूंगा एक पर्टिकुलर ग्रुप को, स्टैगर्ड बन जाएगा. स्टैगर्ड से फिर से 60 रोटेट करूंगा तो एक्लिप्स बन जाएगा. ऑल एक्लिप्स इन केस ऑफ इथेन इज व्हाट, सेम. सबकी स्टेबिलिटी क्या है, सेम ही है. तो सारे एक्लिप्स एक ही पोजीशन पे होंगे. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करना है. शेयर्स लास्ट क्लास के बाद, शेयर्स हाँ लास्ट सर. क्लास के बाद जो हमने लास्ट क्लास तक जहां तक पढ़ा था आइसोमेरिज में, उसमें 1 2 3 4 5 6 6th पेज पे लिखना स्टार्ट करिए. 6th पेज के हाफ पे. eclipsed conformation of ethane is least stable due to, फर्स्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसकी होगी, कन्फर्मेशन में टॉर्शनल स्ट्रेन. सेकंड स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन, और वंडर वाल स्ट्रेन. थर्ड है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन. ये यूनिक है. ड्यू टू सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है.
फर्स्ट है टॉर्शनल स्ट्रेन, in eclipsed conformation बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स on adjacent carbon repel each other. कैसे दिखा सकते हैं आप 3D बना के? अब कुछ है नहीं इसमें, तो बता चुका हूँ कई बार। ये जो बॉन्ड पेयर हैं और इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो आपस में रिपेल करेंगे। इसी बॉन्ड पेयर को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर रिपल्शन को क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन। सेकंड है आपका स्टेरिक रिपल्शन, बिटवीन टू हाइड्रोजन आटम। अब हाइड्रोजन आटम तो छोटा है, बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। Its contribution to rotational barrier that atoms are smaller in size. थर्ड क्या है? और थोड़ी लिख कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। कुछ है नहीं इसमें, आपको याद होगा कौन कौन से हाइपर कॉन्जुगेशन थे बेटा? कौन कौन से किस किस में था हाइपर कॉन्जुगेशन? सुरेश बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पॉसिबल था?
sp2 कार्बन के नहीं, वो तो बाद कंडीशन थी। कंडीशन को ऑब्जर्व हमने किस किस में किया था, किस किस मॉलिक्यूल में, किस किस टाइप ऑफ कंपाउंड में किया था, मतलब किस मॉलिक्यूल अल्कीन में। कार्बोकैटायन अल्किन्स अल्किन्स में किया था, रुकिए, हाँ अल्किन्स में किया था, कार्बोकेटायन में किया था, रेडिकल में किया, है ना। रेडिकल अल्किन में कैसा कॉन्जुगेशन था, कौन सी कॉन्जुगेशन थी अल्किन में? सिग्मा पाई नहीं, गलत, सिग्मा पाई स्टार। पाई में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है हाँ ना, पाई स्टार वेकेंट है ना, तो सिग्मा हाँ सी एच बॉन्ड विल इंटरेक्ट विद पाई स्टार। मैंने डायग्राम प्रॉपर बनाए थे, दिखाया था ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको। कार्बोकेटाइन में क्या कॉन्जुगेशन था? बोलो। सिग्मा पी, सिग्मा वैकन पी सिग्मा वैकेंट पी, और रेडिकल में क्या था? बताइए। सिग्मा पी अभी नया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा स्टार। क्लियर है? सिग्मा, सिग्मा स्टार। देखो, हर बॉन्ड के साथ दो ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगे, हर बॉन्ड के साथ एक सिग्मा। अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बीएमओ और सिग्मा एबीएमओ। देखिए, यहाँ डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल स्टैगर्ड बना रहा हूँ, 3D वाला। ऐसा, दिस। अगर स्टैगर्ड बनाऊंगा तो लाइन कहाँ पे दिखेगी? नीचे की तरफ, और फिर ये बना लेंगे। ठीक। अब जो ऑर्बिटल की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल होगी? सी एच सिग्मा बीएमओ। और यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल होगी इसके अपोजिट? बोलो। सिग्मा एबीएमओ। इसी का नाम क्या है? सिग्मा स्टार। क्लियर? सिग्मा स्टार एबीएमओ। ये कौन सी हो गई? सिग्मा। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इन कन्फॉर्मेशंस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसी को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन बिटवीन सी एच सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सी एच सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है इसको बोलते हैं। सिंस द एनर्जी बैरियर, केवीपीआई में ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि अल्कीन में कैसा हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसा कॉन्जुगेशन है, तो सिग्मा एंड पाई स्टार। Since the energy barrier is very low, it can overcome at room temperature
Hence, these conformations interconvert rapidly at room temperature and can't be separated. श्रेय समझ में आया सारा? 3 स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन, हेलो, टॉर्शनल स्ट्रेन, Yes, sir. स्ट्रेन और स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन. थर्ड वाला टफ था, थर्ड वाला इज टफ. ऑप्शंस में रहेंगे, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे. इट शुड बी स्टडीड प्रायर टू दैट, कि टेस्ट के पहले हमको पता होना चाहिए. डन? क्लियर है? नेक्स्ट है कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन. ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, हाँ बोलो विनती. थोड़ा सा बाकी था. थोड़ा हाँ. सा बाकी है लास्ट का. हाँ, कंप्लीट कर लो ना. ये बाकी है. तब रिकॉल करो बेटा, एक रिकॉल करो. इफ आई टॉक अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वहां पे क्या था? एक वेकेंट ऑर्बिटल थे. वेकेंट क्या था? वेकेंट पी. इसी पी के साथ इंटरेक्शन कौन करना चाहता है? CH स्टेट बॉन्ड. वैसे यहाँ भी इंटरेक्शन दिखा दिया. अब ये पॉसिबल तभी होगा ना जब ये दोनों क्या होंगे? ऑर्बिटल पैरेलल होंगे, अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे. अगर एंगल पे होंगे तो ओवरलैप करना क्या होगा? मुश्किल. बस वही सपोर्ट करिए आप, क्योंकि कुछ भी थ्योरी छूटेगी नहीं. कुछ मतलब मैं मिस नहीं करना चाहता आपको किसी भी एंगल पे, ताकि आप कभी पूछो ना कोई डाउट, सब क्वेश्चन बन जाए. बस वही सपोर्ट है कि कुछ पेजेस अगर आपने हमने डिस्कशन कर ली, उसके स्पेस छोड़ दीजिए, घर पे कंप्लीट कर लीजिए. इतनी चीजें इन्फॉर्मेटिव है, पूरी इन्फॉर्मेटिव है. क्वेश्चन आपको वैसे ही आएंगे जो हमने ऊपर लिखा था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए. डिस्कशन नहीं की मैंने शायद सारे क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, कन्वर्ट करो, देखो, यही सब चेक करने के लिए बोलेंगे आपको. मेन चीज है वही है. और ये सब थियोरेटिकल है. 1 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, वो छोड़ना नहीं चाहिए. वही रखिए. शेष हो जाए तो बोलना बेटा. डन सर. डन. ठीक. एक कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन. प्रोपेन का मॉलिक्यूल बना दिया. अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द सेंट्रल सीसी लाइन. वही मेन चीज होती है इसमें समझने के लिए. तो मैंने सेंट्रल लाइन दिखा दिया. तो डिफरेंस क्या आएगा बताइए बेटा? ऊपर वाले से और नीचे वाले में डिफरेंस क्या आएगा? जो हमने डिस्कशन किया, 1 हाइड्रोजन, जैसे HAHB हमने डिफाइन किया, तो 1 ग्रुप बिकम्स व्हाट? CH3 है ना. काफी कोई दिक्कत इसमें? एक को CH3 बना देंगे, यहाँ पे एक H हो जाएगा, और फिर से वही 60 डिग्री इंक्रीमेंटल रोटेशन करते जाएंगे आप. पर इसमें हर फिर से एक्लिप्स स्टैगर्ड ही बनेगा ना. देखो, एक्लिप्स में CH3 के सामने H होगा, स्टैगर्ड दूर होगा. फिर से एक्लिप्स, फिर जब इसको यहाँ लाओगे तो फिर से H सामने आ जाएगा. अगेन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल गेट डिफरेंट? बोलो, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल यू गेट हियर डिफरेंट? बोलो. डिफरेंट बेटा, डिफरेंट. देखो, इसमें भी सभी डिफरेंट नहीं थे, तो ही डिफरेंट है ना. बट वी मार्क्ड इट HAHB, देन इट इज डिफरेंट. आर यू गेटिंग इट?
हमारे में अगर 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम नहीं, सॉरी, ये दो ही डिफरेंट है, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बट अगर मैं पोजीशन HASB को मार्क कर दूं तो डिफरेंट कहलाएगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल सेम ही है, स्टेबिलिटी का फैक्टर में डिफरेंस नहीं आएगा। तभी ग्राफ में क्या दिख रही है, सारे इक्लिप्स एक ही लेवल पे है। तो सेम थिंग विल हैपन फॉर व्हिच मॉलिक्यूल, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन आल्सो विल गेट सेम, बट यहाँ पे रोटेशनल बैरियर थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जो रिपल्शन है किसके बीच में हो जाएगी, मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, अंडरस्टूड? तो यू कैन राइट बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर में फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो एक्लिप्स में टॉर्शनल बैंड हमेशा सेम ही रहने वाली है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन, क्या लिख दे, मिथाइल एंड हाइड्रोजन आटम in eclipse conformation the rotational energy barrier increases from, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस, और ये डेटा कुछ याद रखने की जरूरत है, स्लाइटली बढ़ जाएगा, which can be overcome at room temperature। तो फिर से वही पूरा करना है। तो यहाँ का भी डायग्राम में बना दूं, तो अगर मैं यही कॉपी पेस्ट कर दूं तो कुछ गलत होगा क्या, बताइए बताइए, बोलो। डायग्राम अगर मैं सेम लिख दूं तो फर्क पड़ेगा क्या, सिर्फ चेंजेस क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंट ज्यादा, बस थोड़ा सा ज्यादा 14 डाल देना है। ये हमारे पास ऑप्शन है, आप लोग बनाना, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देना, कुछ नहीं है इसमें। फिर कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन, यहाँ देखिए, इसको समझते हैं अच्छे से, ये आपको करने भी दिया था। कितने डिफरेंट मिले थे बताइए, उसमें कितने डिफरेंट मिले थे, डिफरेंट कितने मिले थे, डिफरेंट कितने मिले थे, पहला डिफरेंट होगा, पहला एक्लिप्स, फिर दूसरा फिर गॉस जैसा कुछ, फिर एक्लिप्स, फिर एंटी जैसा कुछ, तो 4 डिफरेंट मिलेंगे आप, है ना? 4 डिफरेंट मिलेंगे। तो रोटेशन अबाउट C1 C2 बॉन्ड गिव्स एनालिसिस सिमिलर टू C2 H6 एंड C3H, वो लिखा हूं मैं। रोटेशन अबाउट C1 C2 करोगे, अगर रोटेशन अबाउट C1 C2 करोगे, इट विल गिव द एनालिसिस सिमिलर टू इथेन एंड, बोलो, इथेन एंड व्हाट, प्रोपेन, है ना? यही बन जाएगा, इसी को उठा के वहां रख सकते हैं, C1 C2 का राउंड करेंगे तो। अब ये क्या हो गया, सिर्फ करनी क्या होगी, यहाँ पे इथाइल लिख दूं, काम हो जाएगा, इथाइल लिख देता हूँ। C1 C2 का मतलब CH3 CH2 फिर H H H H और H, तो फिर से वही मिथाइल की जगह पे इथाइल आ जाएगा, दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे डिफरेंट, तो इट विल बी लाइक दिस। और दो ही डिफरेंट आएंगे। प्रोग्राम में क्या लिखा मैंने, रोटेशन अबाउट C2 C3 बॉन्ड रिजल्ट इन एडिशनल एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन, एडिशनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस अबाउट C2 C3 बॉन्ड इन ब्यूटेन इज बेटर, देयरफॉर इट इज बेटर, बिकॉज मुझे अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं, अलग अलग स्टेबल स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी चेंज होगी थोड़ी अलग अलग उनकी। तो अगर मैं उठा के फिर से ऊपर वाला जितना भी हमने लिखा था
यू डोंट हैव दिस लिबर्टी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये आप यहाँ पे जो भी मैंने लिखी है वहां पे कॉपी कर लेते हैं, जो आपने बना ही लिया है ना। सिर्फ हम लोग नेम देना बाकी है फिर। बिकॉज ओनली देखो, किसी का डिसएडवांटेज है, किसी का एडवांटेज है। अब देखें तो अब आपको लगेगा कि ऑनलाइन का डिसएडवांटेज था, पर सर ने उसकी पॉजिटिव चीजें यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कंटेंट बढ़ा दिए, हम लोगों ने कंटेंट बढ़ा दिया पढ़ने के लिए। ये हमारा CS3 है। दूसरा CS3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे CS3 है, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर CS3 है, CS3 यहाँ पे CS3 है 10। तो आप देख लेना, पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, फिर अलग अलग नाम देते हैं। मुझे बताइए, फिर मार्क 1 2 3 4 5 मार्क कर दें। अगर ये 1 मार्क कर दिया, ये 2 कर दिया, तो कैन यू टेल मी स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करने के सबसे पहले आपको फॉलो करनी है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसमें होगा? एक्लिप्स में होगा। अब एक्लिप्स में क्या क्या आएंगे बताइए, कौन कौन आएंगे? 1 आएगा। सर वो उल्टा होगा ना, क्या बेटा? हाँ उल्टा उल्टा। staggered greater हाँ than। हाँ 1 3 क्या होगा बेटा बताओ? 1 3 के बाद 5 और फिर 7 7 तो फर्स्ट जैसा ही है बिल्कुल। 7 एंड फर्स्ट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सभी हैं, 3 एंड 5 भी आइडेंटिकल है, लेकिन वो अगर देखो तो मिरर इमेज जैसा दिखेगा। आपको दिख रहा है ना? देखो 2 और 4 को मिरर इमेज जैसा दिखेगा आपस में। तो भूल गए क्या बोल रहे थे। हाँ ठीक है, स्टैगर्ड में क्या क्या आएगा? 2 4 और 6। 6। All eclipsed are less stable than what? Staggered। ये कंफर्म हो गई। अब 2 4 6 में देखना है, या 1 3 5 7 में देखना है। 1 में क्या देख रहे हैं आप? दोनों CS3 क्या है? आमने सामने। तो स्टेरिक रिपल्शन विल, सारे eclipsed में सेम टॉर्शनल स्ट्रेन है। ऑल eclipsed हैज सेम टॉर्शनल स्ट्रेन, बिकॉज बॉन्ड पे रिपल्शन होगा आमने सामने से। बट यहाँ पे ग्रुप के बीच में भी रिपल्शन होगा। तो CS3 हाईएस्ट रिपल्शन, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। या पहले स्टेबिलिटी कर लेते हैं, फिर नाम देते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? फिर 4 greater than 2 equal to 6, greater than 3 equal to 5, greater than 1 equal to 7। स्टैगर्ड। अब S हमारे पास 2 था, 4 था और 6 था। सबसे पहले स्टेबल कौन सा होगा? 4, फिर 2 इक्वल टू 6। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, जो बाद में कभी डिस्कस करूंगा, पर वो रेयर है, वो पूछेंगे कभी नहीं पूछा, इन्फॉर्मेटिव पूरा। तो 4 सबसे स्टेबल हो गया, बिकॉज 4 में आप क्या देख रहे हो? CS3 अपोजिट है, उसको एंटी कंफर्मेशन कहते हैं। और सेकंड में क्या देख रहे हो? CS3 एंगल 60 डिग्री पे है, उसको क्या बोल दिया? गॉस कंफर्मेशन। तो 4 2 6, फिर क्या आएगा? 3 इक्वल टू 5, फिर क्या आएगा? 1 equal to 7। तो 1 और 7 तो सेम है ही, दिख भी रहा है 7 से। दिस इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ डन? किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें? ये सारे आपने बना के रखा था, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लिया। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, बना के दिखाइए। मतलब आपको वेटिंग रूम में कैसे, मेरे सामने फोन है, स्क्रीन ही बंद हो जाता है बेटा। आप लोग क्या बनाना है श्रेयस? ऐसा डायग्राम बनाना है हर 60 डिग्री का इंक्रीमेंट पर। स्टार्ट कहां से करनी है? फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, फिर सम पोजीशन पे क्या आएगा? 2 आएगा, फिर थर्ड कहीं पे आएगा, फोर्थ। तो 1 2 3 4 5 को मार्क करना। इन द प्रीवियस केसेस ऑल स्टैगर्ड आर सेम, बट हियर वी आर गेटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो पोजीशन सबकी अलग अलग होगी। तो ट्राई टू पुट 1 2 3 4 5, देन आई विल टेल द नेम। नेम तो बता ही चुका हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। पहले को बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, सेकंड को गॉश बोलते हैं। वो नाम वाला से लिखूंगा। आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए। एक मिनट ड्रॉ करिए। देखिए, so this is the energy profile diagram for your n-butane about C2C3 bond. Energy profile diagram for n-butane about C2C3 bond. C2C3 bond. कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को जरा सा भी? No, बताइए। sir. नो सर ठीक है, सबका नाम क्या क्या था? नाम लिख देते हैं, थोड़ा नाम याद कर लीजिए मेरे साथ। फर्स्ट को कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। डिस्क्रिप्टिव लिखूंगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इतना आना जरूरी है सबको। ये कहते हैं गॉश कॉन्फॉर्मेशन। थर्ड कहते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड, पीई। फोर्थ वाला लिखते हैं एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी कॉन्फॉर्मेशन, सब में कॉन्फॉर्मेशन लगा देना, मैं एक में लगा दे रहा हूँ, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड। श्रेयस, जो आप पढ़ते जा रहे हैं सब याद होता जा रहा है? कुछ दिक्कत है किसी में? No, sir. गॉश कॉन्फॉर्मेशन। तो गॉश कॉन्फॉर्मेशन का मतलब सिंपल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी? 60 डिग्री और 300 डिग्री इफ आई गो इन द सेम डायरेक्शन। और लास्ट वाला क्या हो गया? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और भी इसके नाम होते हैं, बट ये सबसे कॉमन, सबसे बेसिक चीजें आपको जाननी है। डन? क्लियर? हाँ ओके, सब नाम ऐड कर दीजिए बेटा, नाम ऐड कर दो। सर इसके थोड़ा ऊपर का लिखने का है। कहाँ बेटा? ऊपर वाला? हाँ हाँ लिख लो ना, ये फटाफट लिख लो। ऊपर के मैंने क्यों लिखने के लिए नहीं बोला आपको? प्रोपेन वाला ये कॉपी पेस्ट था ऊपर वाला, यू कैन लेटर ऑन अपडेट योर नोट्स। हियर आल्सो इफ यू चेक अबाउट C1 C2 बॉन्ड, इट इज सिमिलर, बट ये जो पॉइंट लिखा मैंने, ये बड़ा अच्छा है कि मुझे एक्स्ट्रा स्टैगर्ड और एक्लिप्स कंफर्मेशन मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी सबकी अलग अलग होगी, वो बताने की कोशिश की है। तो आप ऐड कर लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यू हैव सफिशिएंट टाइम। ऐड कर लीजिए।
डन? कॉफी अपडेट कर लिया, लिख लिया? वो स्ट्रक्चर्स लिखना है सर। नहीं तो कर किया होगा ना आपने, ड्रॉ किया होगा, नहीं किया आपने ड्रॉ? यस सर। ये डायग्राम बनाया अभी आपने, ये वाला, दिस वन? हाँ सर। ठीक। अब देखिए वन बाय वन सारे एग्जांपल्स जो भी है, जितने भी हैं, अगर डायहेड्रल एंगल, जो नाम है अलग अलग, 3D भी बना रहा हूं, देखना, डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप्स, पहला अगर मैं 0 लेता हूं तो कौन सी डायग्राम बनेगी? पहली वाली, मिथाइल मिथाइल पे ध्यान दे रहा है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? ये न्यूमैन बनेगा। ठीक है, और इसकी 3D व्यू क्या होगी? ये साथ में करती आएगी। ये फर्स्ट वाला, तो एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे CH3, डायहेड्रल एंगल क्या है? 0। यहाँ पे क्या आएगा? Me, यहाँ पे क्या आएगा? Me। नाम क्या है इसका? फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्या नाम है? फुल्ली एक्लिप्स्ड नाम है। इसको और भी बोलते हैं एक्लिप्स्ड सिन पेरीप्लेनर। एक्लिप्स्ड सिन पेरीप्लेनर। एक्लिप्स तो है, तो साथ में क्या है? सिन पेरीप्लेनर भी है। नाउ इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड वन, इसमें आपने रोटेट किया, बिहाइंड वाले को रोटेट किया, कितने से रोटेट किया हमने? 60 डिग्री से रोटेट किया। पीछे क्या आ गया? CH3 आ गई। CH3 आ गया। CH3 आया मतलब CH3 विल बी फ्रंट। अगर मैं एंगल पे देखूंगा, H क्या रहेगा? बैक। और H जो नीचे वाला लाइन है वो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? Me, H H, बट यहाँ पे Me आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या था? क्या था? गॉश था ना? हाँ इसका सर। नाम क्या था? फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड, तो उससे कम स्टेबल वाले कोई नहीं है। और एक्लिप्स्ड सिन पेरीप्लेनर। सेकंड का नाम है क्या? बोलो। गॉश। गॉश। गॉश नाम है उसका। और कहते हैं इसको
staggered, नाम देते हैं सिंक्लाइनल, सिंक्लाइनल। थर्ड वाले में CS3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसका नाम क्या देंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये तो फिक्स है मेरा फ्रंट वाला। एमी कहाँ पे आ जाएगा? दिस हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और कहते हैं इसको एक्लिप्स्ड एंटीक्लाइनल। दिस वन एमी मिथाइल कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे। इसको बोलते हैं, क्या नाम था इसका? एंटी और ट्रांस स्टैगर्ड एंटी पेरीप्लेनर। स्टैगर्ड तो है, और क्या इसका नाम क्या दे दिया? एंटी पेरीप्लेनर। एक्लिप्स तो है एंटीक्लाइनल, स्टैगर्ड है सिंक्लाइनल, एक्लिप्स्ड सिन पेरीप्लेनर। उसके बाद चीजें क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। फर्स्ट में एंगल क्या है? 0। सेकंड में एंगल क्या है? 60। थर्ड में 120। फोर्थ में 180। नेक्स्ट में क्या आएगा? 240। 240 में क्या आएगा बताइए? 240 सिमिलर टू, ये कौन सा नंबर था हमारा? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, है ना? 7 सेम ही आएगी। एंगल कितनी आएगी यहाँ पे? 300। थ्री हंड्रेड में कौन से आ जाएंगे? गॉश वाले। Seventh will be same as first one. तो
दो, इसमें दो बड़ा कीमती है, और दो में भी अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंटी वाला, ध्यान रखना। बाद में केमिकल रिएक्शन जब एलिमिनेशन पढ़ाएंगे आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन, यही कन्फर्मेशन बनाएंगे, एंटी कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, कोई बता सकता है इतने सारे स्ट्रक्चर्स में किन दो स्ट्रक्चर्स में दोनों एमी सेम प्लेन पे लाई करेंगे? इतने सारे स्ट्रक्चर्स में किस स्ट्रक्चर में दोनों एमी सेम प्लेन पे लाई करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट और 7 फर्स्ट 7 तो सेम ही होता है, और two MEs are lying on same plane. 4 4, because when plane ABC and BCD will make 0 degree and 180 degree, then the groups will lie on what? Same plane. Two methyl groups will lie on same plane. So MECC and CCME, if forms 0 degree or 180 degree, then both the methyl groups will lie on what? Same plane. In case of 1 and 4, 2 methyl groups lie on same plane. What is dihedral angle? 0 degree. What is dihedral angle? 1 degree between CME, between two ME groups. ये क्या है? Angle between MECC and CCME. Done? यहाँ तक क्लियर है? हेलो शेष, यहाँ तक हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर। ओके, हाँ अब देखना, और डायग्राम हमने बना ही लिया ऑलरेडी। तो सबसे स्टेबल कौन है बताओ, मैं थोड़ा यहाँ पे गाइड कर दूं। सबसे स्टेबल कौन है? एंटी स्टेबल है या गॉस स्टेबल है? एंटी स्टेबल है। एंटी अगर आप यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा समझाता हूँ, आप दिमाग में रखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, अगर व्हाट विल हैपन टू दिस OH? क्या करेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे अगर OH होता, यहाँ पे अगर OH होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन स्टेबल हो जाएगा फिर, गॉस या एंटी कन्फर्मेशन? गॉस गॉस। सिंपल सा,
Gauss will be stable than anti in case of intramolecular hydrogen bonding at Gauss conformation. क्योंकि एंटी में दोनों ग्रुप क्या होंगे, अपोजिट होंगे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं पॉसिबल है. डन. सर फिर से बता सकते मैं थोड़ी वे के लिए डिस्कनेक्ट हुई. मैं कह रहा हूँ गॉश में अगर मैं इन प्लेस ऑफ CH3 OH लगा दूं तो उनमें क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग. CH3 will not show H bonding, but if I put in place of CH3 OH लगा दूं, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल क्या होती है, CH2 OH, वही बताया मैंने. वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी. बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी किसका, गॉश का. तो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं. इफ आई आस्क किसका डायपोल मोमेंट 0 है अप्रोक्सीमेटली, एंटी का अपोजिट है. हेलो, एंटी का अपोजिट है ना डायपोल हाँ, मोमेंट. तो अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो एंटी कंफर्मेशन का अपोजिट है CH3, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगी, 0 आएगी. लेकिन अगर मैं फिर भी बोलूंगा ब्यूटेन का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब, हाँ एक चीज बताना भूल गया, डायग्राम बनाया हमने यहाँ पे कमेंट करिए. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एट या कॉन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल नहीं, देखिए molecules exist in those conformations which lie on potential energy minima. Potential energy minima, that is which conformation? Staggered conformation. मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना चाहेगा, स्टैगर्ड कंफॉर्मेशन में रहना चाहिए. क्यों स्टैगर्ड में रहना चाहेगा, बिकॉज स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है. तो जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, 2, 4, 6 जो पोजीशन है वो पोटेंशियल मिनिमा है. एंड द मॉलिक्यूल विल ट्राई टू स्टे ऑन दोज पोजीशंस बिकॉज उनकी एनर्जी क्या रिलेटिवली कम है. जो नेट डायपोल मोमेंट निकलेगा वो निकलेगा तीनों के रिजल्टेंट से. इफ आई टॉक अबाउट गॉश का डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या, बताओ. गॉस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या, नहीं होगा. नहीं. एक्लिप्स का कंट्रीब्यूट नहीं कराएंगे, उसकी नेग्लिजिबल अमाउंट होगी. पर गॉश और एंटी सब नेट दिखाएंगे डायपोल मोमेंट. बिकॉज ऑफ गॉस कॉन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ existence of Gauss conformation, N-butane has non-zero dipole moment. बात समझ में आई. N-butane has what? Non-zero dipole moment. तो 2 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया मैंने ओरली. डायपोल मोमेंट चेक करने के लिए आप देखो कि ग्रुप्स अपोजिट है या नहीं है. डेफिनेटली कोई भी एक्लिस्ट डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता. एंटी 0 हो जाएगा बिकॉज ग्रुप्स अगर सेम है. तो ग्रुप्स अलग अलग होंगे तो भी एंटी भी नहीं होगा. You can place any groups na in place of CH3 and CH3. And Gauss is also having got non-zero dipole moment, but still net dipole moment will be contributed by those conformations which lie at what, potential energy minima. तो potential energy minima पे lie करेंगे, उन्हीं का contribution आएगा किसमें, dipole moment में आएगा. So yes, clear है यहाँ तक? हाँ सर. डन, सबको क्लियर है यहाँ तक, सबको कोई दिक्कत नहीं है. तो इतना हमने कर लिया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही बता दिया बस आपको मैं कंप्लीट करूंगा इसको, फिर आपको बताऊंगा डिस्कशन क्लास में. लेकिन 2 पॉइंट है जो बड़ा कीमती है, जो ध्यान रखना है. हो जाता 2 मिनट का काम था, हो जाता. तो डायपोल मोमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ गॉस कंफर्मेशन इज मोर देन व्हाट, बोलिए, एंटी. और मैं बता दिया आपको कि एंटी कंफर्मेशन बड़ा काम का है. जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे वहां भी एंटी लाएंगे. अच्छा एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ. एंटी का बनाओगे आप फिशर या गॉश का बनाओगे फिशर, किससे डायरेक्टली बनेगा. फिशर प्रोडक्शन डायरेक्टली हम किससे बनाएंगे, वाई से बनाए थे. क्या बोलो, इक्लिप्स से.
एक्लिप्स से, मतलब आप ऑप्शन गलत दिए थे सर, है ना? हाँ तो दूंगा, पढ़ा चुका हूँ। तो गॉश एंड एंटी विल बी नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट? फिशर। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्लिप्स फर्स्ट। वो भी एक्लिप्स में कौन सा सिखाया था? वाई वाई वाला। हाँ सर। 2 वाई वाई बनाएंगे और जैसा 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 राइट लेफ्ट है उसको वैसा प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इतनी अपडेट कर लेना आप लोग, इतना मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इतना अपडेट कर लेना। जहां जहां कुछ मिसिंग होगा कर लेना। एक बार वन टाइमर, एक बार अपडेट कर लेंगे, टॉपिक ही आ गई आपको, झंझट ही नहीं है किसी चीज की। अच्छा एक बात बताओ, एंटी में जो एंटी पोजीशन लिखा मैंने, एमई और एमई में क्या एंगल है? 180। कोई डाउट? बोलो। नो तो इस एच में और इस एच में क्या एंगल है? 180। 180 तो डिपेंड करता है ना, आपने एमई को वहां रखा है। अगर हमने होल्ड ऐसा किया होता कि एच को रखते वहां पे, उस तरह इसमें क्या एंगल है? 180 180। मतलब एमई तो एंटी कंफर्मेशन में है ही, एच एच भी क्या है? एंटी कंफर्मेशन में। एच एच भी क्या है? एंटी कंफर्मेशन में। बट अगर मैं पूछूंगा ये एमई और इस एच का पोजीशन क्या कहलाएगा आपस में? गॉश गॉश कहलाएगा या सिंक्लाइनल कहलाएगा, पता नहीं क्यों नाम देते हैं ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। डन, ठीक है, इतना कंप्लीट करना, अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पार्ट बच के इसका, ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे और खत्म ही हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ऑप्टिकल खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes. ठीक, चलिए, थैंक यू बेटा। सर हाँ सर बोलो। ये नोट्स आप अभी शेयर कर सकते हैं? हाँ अभी तुरंत कर देता हूँ, तुरंत हाँ शेयर कर देता हूँ। ओके। ये पिछले बैच में हर्षित बोलता था कि सर एक काम करो सर, 1 मिनट के अंदर शेयर कर दो तुरंत। हम बोले करता हूँ, डांटो मत। मतलब अभी 12th बैच में है वो, मेडिकल वाले बैच में।